Hello student. Today we are going to learn next problem number 4. Retirement problem number 4. In this problem exactly we learn um, retiring partners amount paid by selling old asset. Okay. And concept related to RDD. Both one concept we learn in this problem. Problem number from your textbook, problem number 179, problem number 6. Page number 179, problem number 6. See, this one is a problem. Following is the balance sheet of Anil, Sunil and Suresh. See, there are three partners, Anil, Sunil and Suresh, who sharing profit and losses equally. Means here, partners profit sharing ratio is what equally? Means 1:1. Understood everybody? Ratio equally means what here? 1:1. Then after the given balance sheet, old balance sheet as on 31st March 2019. Okay, see liability side, first one balance they given creditors 20,300. Creditors we posted to new balance sheet liability side. Bills payable posted to new balance sheet liability side 10,600. General reserve is a part of accumulated profit, that's why can be distributed to all partners in their old ratio. ओके तो अभी कितना दिया है यहाँ पे 13,500 दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. अंडरस्टूड. देन आफ्टर द गिवन कैपिटल अकाउंट, this capital account we transfer to or posted to partners capital account credit side by balance brought down Anil capital, Sunil capital and Suresh capital. Then next one, see asset side, first balance bank balance amounted rupees 8,400 pending. This one no, there is no any posting because on bank we add some amount or less some amount, that's why bank account is pending. Next debtors amount 18,000. okay, that can be posted to new balance sheet asset side. Then after computer, same as it is, we posted to new balance sheet asset side. Land and building posted to new balance sheet asset side. Machinery, new balance sheet asset side. Furniture, new balance sheet asset side. Goodwill, see here they give one goodwill balance in balance sheet. Okay, goodwill is already available in our old balance sheet. So we are finding here first one difference between both new goodwill and old goodwill, and then that amount distributed to all partners in their ratio. Okay, see पहले I'll show you posting, all posting. पहला क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स की पोस्टिंग होगी. देखो क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखा है मैंने, क्रेडिटर्स देखा कहाँ पे लिखा है मैंने, न्यू बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी साइड, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. देखो बाद में देखते हैं क्या था नेक्स्ट बैलेंस क्या है, बिल्स पेबल. ओके, तो बिल्स पेबल भी कहाँ पे जाएगा, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. दिखा सबको, दिखा ये. ओके, देन देखते हैं जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व के पहले देखते हैं जो कैपिटल बैलेंस है, वो कैपिटल बैलेंस भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और बाद में जनरल रिजर्व की भी पोस्टिंग करते हैं. तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, ये देखो स्पेसिमेन कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर
बाद में अनिल कॉलम, सुनील कॉलम, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ओके, तो देखते हैं डेबिट साइड में पहले पोस्टिंग, सॉरी क्रेडिट साइड में पहले बैलेंस की पोस्टिंग होगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,600 अनिल, 35,000 सुनील एंड सुरेश 32,000। ये हो गया, इतना समझ में आया। पोस्टिंग की हमने। बाद में क्या करना है, जनरल रिजर्व की अमाउंट दी थी 13,500, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनके रेशो में। रेशो क्या था, 1:1:1। 13,500 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आंसर आ रहा है क्या, अनिल को 4,500, सुनील 4,500 एंड सुरेश 4,500। अंडरस्टूड। देखो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, देखो ये पोस्टिंग है, दैट्स वैसे एक ही इफेक्ट होगा। कहाँ पे किया, जो अनिल सुनील एंड सुरेश का जो भी कैपिटल अमाउंट था वो हमने ट्रांसफ़र किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व है 13,500, तो 13,500 हमने 1:1:1 में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। आफ्टर दैट बैलेंस किया, अनिल के कॉलम में 4,500, सुनील 4,500 एंड सुरेश 4,500। ये होगी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। देन देखते हैं एसेट साइड क्या क्या बैलेंसेस दिए हैं। फर्स्ट वन बैलेंस दिया है बैंक। बैंक बैलेंस पेंडिंग रखते हैं बिकॉज यहाँ पे ऐड भी होगा या लेस होगा, दैट कैन बी डिपेंड ऑन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो दैट्स वाई इसकी वर्किंग नोट करेंगे तो इसे पेंडिंग रखते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स की अमाउंट क्या है, 18,000। कितनी है, 18,000। पहले पोस्टिंग करते, पोस्टिंग होगी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स। अभी मैंने डेटर्स ये आउटर कॉलम में क्यों लिखा है, देखते हैं आउटर कॉलम में क्यों लिखा है 18,000, क्योंकि उसके वहाँ पे आरडीडी भी दिख रहा था। तो ये कितनी आरडीडी थी, 900 रुपीज़। हाउ मेनी आरडीडी अमाउंट रुपीज़, 900। बट सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, देखो डेटर्स वेर ऑल गुड, डेटर्स वेर ऑल गुड एंड आरडीडी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर। मतलब यहाँ पे हमें आरडीडी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या पहले से हमने प्रोविज़न की थी, उतने पैसे हमारे बच गए। पता है सबको आरडीडी मतलब क्या करते हैं, प्रोविज़न। प्रोविज़न करते हैं मतलब क्या, मैं पहले से ही कंसिडर करती हूँ कि इतना ये पर्टिकुलर, इतने पर्टिकुलर अमाउंट की पैसे वो मुझे पर्टिकुलर कस्टमर नहीं देने वाला है, तो मैं उतने पैसे साइड में निकाल के रखती हूँ 900 रुपीज़। बट बाद में व्हेन सुरेश इज एडमिटेड देन पता चला कि हमें क्या हो रहा है, सॉरी व्हेन सुरेश इज रिटायर फ्रॉम बिजनेस तो पता चला कि डेटर्स क्या है, कंसिडर गुड, सारे क्या है डेटर्स क्या है, गुड है। तो जो भी आरडीडी है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने पहले से निकाल के रखे थे साइड में, वो हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। वो हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, मतलब इसकी पोस्टिंग होगी, इसे एडजस्टमेंट है ही नहीं है तो उसकी पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, उस 900 रुपीज़ की, बाय आरडीडी ₹900 दिखा सबको, बाय आरडीडी ₹900। देखो मैंने क्या क्या पहले पोस्टिंग की, डेटर्स की 18,000 आउटर कॉलम में, बिकॉज डेटर्स आर कंसिडर एज गुड, सो वहाँ पे कोई भी आरडीडी लेस नहीं होगा। और जो भी 900 की पोस्टिंग बाकी थी वो पोस्टिंग कहाँ पे की मैंने, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स। क्या है, कंप्यूटर्स ₹17,500। तो कंप्यूटर्स देखते हैं कहाँ पे जाएगी पोस्टिंग। कंप्यूटर की पोस्टिंग भी सेम जगह होगी, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड कंप्यूटर्स। दिखा, कंप्यूटर 17,500 अभी उसको इनर में लिखा है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट भी देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय ₹1,900। कितने रुपये से कंप्यूटर रिड्यूस हो रही है, मतलब कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने रुपये से, 1,900। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, क्या करेंगे फर्स्ट इफेक्ट, सो लेस फ्रॉम कंप्यूटर 1,900,
मतलब पहले अमाउंट थी 17,500 माइनस 1,900, देन आउटर में अमाउंट है 15,600, 15,600। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आपका? यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कंप्यूटर्स ₹1,900, कंप्यूटर ₹1,900। अंडरस्टूड? ओके, ये हो गया सेकेंड इफेक्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। हाउ मेनी? 70,000। ओके, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट पोस्टिंग करते हैं पहले, बाद में इफेक्ट करते हैं। पोस्टिंग होगी उसकी न्यू बैलेंस शीट, एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। हाउ मेनी? लैंड एंड बिल्डिंग ₹70,000। उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। हाउ मेनी? बाय 10%। तो एप्रिसिएशन होगा मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी, तो 10% कितने होते हैं? 70,000 के ऊपर कितने हो रहे हैं? 7,000। तो 7,000 क्या होगा? ऐड होगा। एप्रिसिएटेड रुपीज 7,000 ऐड, एंड आउटर में आएगी 77,000 टोटल। ओके, क्योंकि ये अप्रिसिएट हो गया मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एसेट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गया मतलब हमारे लिए इनकम हो गया। तो कहाँ पे लिखेंगे? सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी, सॉरी बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹7,000। हाउ मेनी? लैंड एंड बिल्डिंग ₹7,000। 7,000 कैसे आए? 70,000 के ऊपर 10% 7,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट क्या है? मशीनरी। मशीनरी कितनी है? 10,000। तो मशीनरी की पोस्टिंग होगी, मशीनरी अकाउंट कहाँ पे जाएगा? तो मशीनरी न्यू बैलेंस शीट, एसेट साइड 10,000। उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट क्या थी? मशीनरी रिवैल्यूड ₹9,400। मशीनरी रिवैल्यूड होके कितनी अमाउंट हो रही है उसकी? 9,400 हो रही है। तो 9,400 कंपेयर करते हैं 10,000 एंड 9,400, तो हमें डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे कितने रुपीज़? 600 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? 600 रुपीज़ का। तो 600 रुपीज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब भी 9,400 है। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 10,000। तो असेट्स वैल्यू डिक्रीजेस, एंड डिक्रीजेस मीन्स वी कंसिडर हियर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएट हो रही है, तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट हो गया एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, दैट्स वाई उसका इफेक्ट होगा टू मशीनरी ₹600। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? फर्नीचर ₹20,000। फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? यस है। अभी फर्नीचर के एडजस्टमेंट में प्रॉपरली फोकस करो कि बहुत जरूरी है यह एडजस्टमेंट। क्या है? फर्नीचर वेयर सोल्ड एट रुपीज़, ये वाली एडजस्टमेंट, फर्नीचर वेयर सोल्ड एट ₹21,800 एंड पार्ट payment of 15,000 was made to Suresh by RTGS and balance transfer to his loan account। मतलब इस स्टेटमेंट का पहला मीनिंग समझ के लेते क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब। यहाँ पे उन्होंने बताया है फर्नीचर वॉज सोल्ड, कितने रुपीज़ को फर्नीचर हमने सोल्ड किया है? 21,800 रुपीज़ में। तो ये 21,800 उसमें से 15,000 हमें किसे दिए हैं? सुरेश को दिए। किसे दिए हैं? सुरेश का पेमेंट किया हमें। कितना? किसका? सुरेश का पेमेंट किया है। तो ओके, सुरेश का पेमेंट कितने रुपीज़ को किया हमने? 15,000। सुरेश का पेमेंट किया हमने 15,000। 15,000 कैसे किया है? RTGS के थ्रू, RTGS थ्रू किया है। बाद में
देखो फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू क्या थी 20,000, कितने रुपीज़ थी 20,000, ओके 20,000 थी, बट हमने वो सोल्ड कितने रुपीज़ को किया है 21,800। तो हमें प्रॉफिट मतलब ऐसे है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस कम है, अगर क्या है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया, कितने रुपीज़ का हो गया प्रॉफिट हमें यहाँ पे, कितने रुपीज़ का 1,800 रुपीज़ का, कितने रुपीज़ का हो गया 1,800 का। पहले पोस्टिंग करते और पोस्टिंग करते समय सिर्फ 15,000 के ही पैसे उसे दे है, उसकी पोस्टिंग करना ज़रूरी है। तो उसकी पोस्टिंग होगी और ये बैलेंस क्या हो जाएगा नील होगा, क्योंकि 20,000 था वो पूरा फर्नीचर सोल्ड कर दिया हमने। ओके अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन इसमें से 15,000 की पोस्टिंग होगी, किसे पे की है हमने, देखो 15,000 पे किए हमने, किसे पे किए है तो सुरेश को, किसे पे किए है सुरेश को। तो 15,000 का यहाँ पे इफेक्ट हो गया और 1,800 हमें प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट की पोस्टिंग कहाँ पे होगी यहाँ पे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके फिर से बताती हूँ, पहले से फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, पहले से फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी, कितनी थी 20,000, तो वो सोल्ड हो गया 21,000 को, मतलब बैलेंस ही नील हो गया, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। ओके उसमें से 15,000 हमें पे करने हैं सुरेश को। ओके 15,000 का ही पेमेंट होगा सुरेश का, तो उसका प्रॉफिट है वो लिखेंगे, या पहले लिखते हैं सुरेश को जो अमाउंट पे की उसका इफेक्ट 15,000 और 1,800 क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बाकी है, गुडविल है। अभी गुडविल एडजस्टमेंट भी देखो प्रॉपरली, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करना जरूरी है। गुडविल क्या है, गुडविल की अमाउंट 12,000। देखो एडजस्टमेंट में गुडविल की अमाउंट क्या दिए है, कितनी दी है 16,500 दी है, कितनी दी है 16,500। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे पर्टिकुलर गुडविल वैल्यू इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज होगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा 16,500 तो हम लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट उसका होगा देखो आपको यहाँ पे दिखेगा 16,500 गुडविल की अमाउंट है लास्ट में। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड 16,500, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अभी जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितने रुपीज़ का आएगा 16,500 माइनस 12,000, तो जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितने रुपीज़ आ रहा है, तो उसकी पोस्टिंग होगी गुडविल 3,500, सॉरी 4,500, कितना 4,500, देखो यहाँ पे दिखेगा। और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट के करने हैं उनके रेशो में 1:1:1। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी है, दैट्स वाई कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 1,500, 1,500 एंड 1,500। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके अभी सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ।
देखो अब ये सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएट, सबको पोस्टिंग सब समझ में आए, ओके। क्रेडिट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेबल थे, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल। क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर किए कहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर रेशो, तो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने उनको 4,500 फॉर ईच पार्टनर, ओके। कहाँ पे पोस्टिंग की हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल बैलेंस कहाँ पे गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट हमें पेंडिंग रखना था तो पेंडिंग रख दिया हमने। बाद में क्या है, डेटर्स है, डेटर्स 18,000 थे, डेटर्स 18,000 थे। बट जब हमें एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद पता चला कि क्या है, वो ऑलरेडी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, तो हमने क्या किया, उसमें से वो अमाउंट लेस नहीं की। जैसे एज इट इज़ आउटर में लिखे 18,000 और सेकेंड इफेक्ट वो बच गए पैसे, इसलिए लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें गेन हो गया इसलिए। देन नेक्स्ट था कंप्यूटर हमने लिख दिया न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। गुडविल भी एसेट साइड लिखना है, बट गुडविल की दूसरी अमाउंट एसेट साइड लिखेंगे, तो गुडविल 12,000 एसेट साइड। और बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है, वो देखते बाद में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वन एडजस्टमेंट ये है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, 70,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या निकाला है, 10%, 7,000 क्या आ गया, एप्रिसिएशन आ गया, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। ये होगी फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट हो गया, ओके। उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पे, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, कंप्यूटर इज रिड्यूस बाय 1,900। कंप्यूटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 1,900 से। तो हमने क्या किया, उसमें से वो उतनी अमाउंट लेस की, कंप्यूटर में से क्या की हमने 1,900 लेस की। ये भी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट ही थी, फर्स्ट इफेक्ट हो गया उसका। सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका, यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई उसका सेकेंड इफेक्ट गया प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कंप्यूटर्स 1,900। ये थी फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट वन क्या है, डेटर्स के बारे में। डेटर्स को कंसिडर किया हमने एज गुड, नो लॉन्गर रिक्वायर टू मेंटेन, तो इसे मेंटेन नहीं करना, तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली 18,000 लिख लेते हैं। और उसका सेकेंड इफेक्ट होगा कहाँ पे, ऑलरेडी 900 रुपीज़ हमें बच गए हमारे, दैट्स वाई यहाँ पे हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। अंडरस्टूड। बाद में देखो मशीनरी के बारे में लिखा है, क्या लिखा है मशीनरी के बारे में, मशीनरी इज रिवैल्यूड रुपीज़ 9,400। कितने रुपीज़ से हो रहा है, 9,400 रुपीज़ से हो रहा है। तो मतलब अभी फाइनल वैल्यू क्या है मशीनरी की, 9,400 है। तो डेप्रिसिएट हो गया 600 से, पहले 10,000 थी, मतलब 600 रुपीज़ से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जाएगा, फिर एसेट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट से, मशीनरी 600 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यू रुपीज़ 16,500। तो ये 16,500 जो है ना, वही लिखने हैं न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। तो लिखते हैं न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, देखो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको 16,500 लिखा, बट हमारे इसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू कितनी थी हमारे एसेट की, गुडविल की वैल्यू थी 12,000, कितनी थी 12,000। तो 16,500 में से माइनस करते हैं 12,000, ओके। फिर भी कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, 4,500। कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, 4,500। तो यहाँ पे लिखते समय ऐसे लिखेंगे, गुडविल स्लिप और
दूसरा इफेक्ट होगा, जो भी डिफरेंस है उसका डिफरेंस इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 1400 1500 1500 एंड 1500 फॉर ईच पार्टनर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है एडजस्टमेंट, ये सेकेंड है। फोर्थ वन एडजस्टमेंट फोकस करो। देन लास्ट वन एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर वेयर सोल्ड ₹21,800 एंड उसमें से 50 पार्टली पेमेंट करना है हमें। क्या करना है, पार्टली पेमेंट करना है। तो पार्टली पेमेंट जाएगा कहाँ पे जाएगा, वो पार्टली पेमेंट देखते हैं। तो फर्नीचर में जाते हैं, फर्नीचर में क्या है, सोल्ड हो गया, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, कैश में जाएगा। ओके, 20,000 कहाँ पे जाएंगे, कैश में जाएंगे, क्योंकि अभी वो एसेट सोल्ड होगी तो 1,800 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का इफेक्ट यहाँ पे लिखा, तो फर्नीचर अकाउंट 1,800। ओके, ये हो गया प्रॉफिट 1,800 रुपीज़ का। उसमें से पार्टली पेमेंट किए थे हमने किसे, सुरेश का पेमेंट किया था, तो यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक टू बैंक ₹15,000। देखो अभी मैं टैली करके बताती हूँ कैश की अमाउंट क्या आएगी। कैश की अमाउंट पहले से क्या थी, यहीं पे दिखेगा अच्छे से। ओके, कैश की अमाउंट देखो पहले से क्या थी, 8,400। कितनी थी, 8,400। ओके, फिर एसेट सोल्ड हमने, तो हमें कितने रुपीज़ मिले, तो एसेट 20,000 की, प्रॉफिट तो हमने कंसिडर कर लिया, 20,000 हमारे इसमें अकाउंट में ऐड हो गया। ओके, तो टोटल हो गई 28,400। कितनी टोटल होगी, 28,400। उसमें से 15,000 हमने पे किए हैं, 15,000 हमने पे किए हैं। तो लेस करो अभी, 28,400 माइनस 28,400 माइनस 15,000, क्योंकि वो पैसे हमने पे किए रिटायरिंग पार्टनर्स को। तो क्या टोटल आ रही है, 13,400। ठीक से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। पहले अमाउंट क्या थी, यहाँ पे दिखाती, 8,400। ओके, सोल्ड हो गई फर्नीचर अमाउंट, सेलिंग ऑफ फर्नीचर अमाउंट कितनी है, सेलिंग ऑफ फर्नीचर अमाउंट 21,800। ठीक से बता रही हूँ कैलकुलेट करके। तो टोटल हो गया 30,000। उसमें से पे किए हैं 15,000। कितने, 15,000 पे किए हैं रिटायरिंग पार्टनर्स को। तो आंसर आ रहा है 15,200 इज अ कैश बैलेंस। देखो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या नोटबुक में नोट डाउन करके लो, क्या है एग्जैक्टली अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस की, ये यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, 8,400 पहले से बैलेंस था कैश का। फिर फर्नीचर स्टोर हो गए तो ऐड हो गई वो अमाउंट 21,800। ओके, तो टोटल हो गई 30,200। उसमें से हमने पेड किए तो वो क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे लेस हो गया, लेस होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या आ रही है हमारी, 15,200। तो लिखेंगे 15,200। सबको समझ में आया, या नोट डाउन करके लिख लो। बैंक का बैलेंस था 8,400, उसमें ऐड करने हैं 21,800, फिर उसकी टोटल होगी फिर 30,200। उसमें से लेस करने हैं, उसे पे किया दैट्स वाई उसे लेस करने हैं 15,000। बाद में ये बैलेंस दिखेगा आपको 15,200। फिर क्या करते हैं, अभी टैली करते हैं। सारे एडजस्टमेंट समझ में आया सबको। यहाँ से एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 कंपलसरी हमें रिवाइज करना है। ओके, वो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस प्रॉब्लम में से, एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5। ओके,
तो करते हैं पहले अकाउंट टैली कौन सा होता है, रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करते हैं। तो टोटल आ रही है हमारी, कितनी टोटल आ रही है देखो, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 9,700 और डेबिट साइड की टोटल थी कितनी है, डेबिट साइड की टोटल 2,500, कितनी है 2,500 माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस दिख रहा है 7,200, कितने रुपीज़ का दिख रहा है 7,200। तो 7,200 हमें क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके रेशो में। रेशो क्या है था 1:1:1। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये आया डिफरेंस कितने रुपीज़ 2,400 फॉर अनिल, 2,400 फॉर सुनील एंड सुरेश 2,400। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,400 एंड 2,400 फॉर सुरेश। ये हो गया। बाद में क्या करते हैं, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते समय देखना है कौन सी टोटल ज़्यादा है, यहाँ पे अभी क्रेडिट साइड की सारे टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा। तो बोथ वन बैलेंसेस जो भी है वो लिख दिया हमने। अनिल की टोटल है 52,000, सुनील की टोटल है 43,400 एंड सुरेश की टोटल है 40,400। तो क्या करते पहले सुरेश को टैली करते, तो उसमें से हमने क्या किए थे 15,000 हमने उसे पे किए थे तो लेस करते 40,400 माइनस 15,000, 40,400 माइनस 15,000। आंसर क्या आ रहा है, $25,400। कितना आंसर आ रहा है 25,000। तो ये कंसिडर क्या करना है हमें, लोन अकाउंट कंसिडर, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है देखो क्या है, बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट। तो लिखा है मैंने यहाँ पे टू सुरेश लोन अकाउंट 25,400, ये हो गया। देन क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को टैली करते। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ बैलेंस ही डायरेक्टली क्या आएगा, फिर 52,000 बैलेंस कैरिड डाउन एंड 43,400 बैलेंस करंट। ये ट्रांसफर हो गया, अभी ये क्रेडिट साइड है तो ये ट्रांसफर हो गए, सॉरी डेबिट साइड है, ट्रांसफर हो जाएगा सुरेश लोन अकाउंट के अमाउंट, और ये दोनों कैपिटल में जाएंगे। सुनील कैपिटल 52,000 एंड सुनील कैपिटल 43,400 एंड अनिल 52,000 हो गया। फिर ये टैली किया जाएगा। यहाँ पे तो फर्नीचर की अमाउंट तो नील हो चुकी है, गुडविल की अमाउंट देखो सबकी टोटल हो रही है 1,51,700। ओके, इतना ही था इस प्रॉब्लम में। एक बार फिर से एटलीस्ट 2-3 टाइम देखो और तो पता चलेगा एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या किया है। आपके टेक्स्ट बुक में भी पहले से सॉल्व किया है तो पता चलेगा आपको हमें यहाँ पे क्या करना है। बट इस प्रॉब्लम में ये दोनों भी एडजस्टमेंट क्या है बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए होमवर्क है, इसकी जर्नल एंट्री आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है। क्या करना है, जर्नल एंट्री आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके, याद रहेगा सबको एग्जैक्टली क्या करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या करना है। पहले क्या किया है देखते, बाद में देखते क्या करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वन कैलकुलेट किया गुडविल कैलकुलेट किया, फिर सॉरी गुडविल का डिफरेंस कैलकुलेट किया 16,500 माइनस 12,000, फिर 4,500 ये डिफरेंस आया। ये डिफरेंस हमने क्या किया, रेज किया, मतलब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो 1:1:1। ये एडजस्टमेंट थी। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या थी, फर्नीचर सोल्ड किया हमने। फर्नीचर सोल्ड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसमें से 15,000 अमाउंट हमने रिटायरिंग पार्टनर्स को दिए। तो फर्नीचर सोल्ड हो गया 21,800 को,
20,000 अमाउंट, पहले फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी, 21,800 को सोल्ड होने की वजह से 1,800 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1,800 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर किया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड 1,800। उस देन उस फर्नीचर में से वो फर्नीचर वो 21,800 वो कैश के अंदर ऐड होंगे, उसमें से 15,000 लेस करने हैं, 15,000 लेस करने, और इसका दूसरी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड सुरेश अकाउंट में टू बैंक 15,000। ये हमने किया है। अगर हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है तो मैं जनरल एंट्री बताती हूँ इन शॉर्ट में क्या क्या आएगी, आप बाद में। अगर पहली जनरल एंट्री है तो देखो, पहले जनरल एंट्री आएगी जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो अनिल के लिए अमाउंट 4,500, सुनील के लिए 4,500 एंड सुरेश के लिए 4,500। ये होगी जनरल रिजर्व की एंट्री। देन नेक्स्ट क्या है, देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा है तो उसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 7,000। देन कंप्यूटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 1,900, तो एंट्री होगी उसकी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 1,900। ओके। नेक्स्ट डेटर्स की एंट्री होगी, मतलब वो आरडीडी की एंट्री होगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ₹900। नेक्स्ट एंट्री होगी मशीनरी की एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 600। मशीनरी की एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ₹600। बाद में गुडविल की एंट्री होगी, गुडविल तो एक पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एसेट्स है, और दूसरी पोस्टिंग है मतलब उसकी जनरल एंट्री आएगी। जनरल एंट्री सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की आती है, तो जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,500, 1,500 एंड 1,500 फॉर ऑल पार्टनर्स। देन फर्नीचर की एंट्री होगी, फर्नीचर की एंट्री यहाँ पे हमने सोल्ड किया तो उसकी एंट्री करनी कंपलसरी जरूरी है, तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 21,800। देखो यहाँ पे याद रखो 21,800, ये पूरी अमाउंट लिखनी है, आप सेपरेटली लिखते तो भी चलेगा। तो एंट्री अगर आपको ऐसे प्रॉफिट ये सब अलग दिखाया तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 21,800 टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर ₹1,800। ये ऐसे कर सकते हो, ओके। देन कहाँ पे गया, ये हो गया। हाँ, 15,000 पे की है ना, तो उसकी एंट्री होगी क्या नाम है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट जनरल एंट्री इज व्हाट, वो प्रॉफिट हो गया, उसकी एंट्री होगी, तो एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट 2,400, टू सुरेश अकाउंट 2,400 एंड टू सुनील अकाउंट 2,400। ओके, ये था आज के लिए प्रॉब्लम। ये प्रॉपरली फोकस करो, इसकी जनरल एंट्री नोटबुक में सॉल्व करो।